Bonjour. Bonjour Kanika, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Je vais bien aussi, merci. Alors, je vois Shivani aussi. Elle vient d'arriver. Bonjour Shivani, comment ça va? Bonjour, monsieur, ça va bien. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On commence par toi, Kanika. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? What does that question mean, Kanika? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? What do you do? What did you do today? Right? What did you do today? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais à l'université. je suis allé, je suis allé à l'université. Voilà. Quoi d'autre? What else? Quoi d'autre? Quoi d'autre is what else? Quoi? Q-U-O-I. Quoi? D apostrophe A-U-T-I. Oh là là. Quoi d'autre is what else? Voilà. Quoi d'autre? Oui. Je donne quoi? J'ai. Je attend class. I attended class. So उसके लिए verb क्या होता है शिवानी ध्यान रखिएगा assister Je assiste. au cours क्लास से अटेंड करना होता है assister au cours Je assiste au cours. voilà Après, j'ai assisté au cours okay I can see Navya bonjour Navya comment ça va Bonjour, je vais bien. Et je vous? vais bien aussi merci alors Navya aujourd'hui tu es rentré à quelle heure de ton université Euh, j'ai arrivé à, sur, euh, à, oh you know it à 15h30 Cancer from, yeah. ओके तो सब लोग बताइए इवन नवे आप भी बताइए जब आप बोलते हो जे arrivé आई Je arrive suis arrivée. हाँ je suis arrivé में extra I. मैं पहुंची je suis arrivé à 15h30 d'accord okay so Kanika is telling that she attended classes how do you say that attended classes Kanika J'ai assisté au cours. assister au cours right Navya when you attend classes you don't say the verb attendre that's wrong French you say j'ai assisté au cours I attended classes okay what else Kanika quickly tell me two more things and then we'll ask Shivani and then Navya j'ai déjeuné avec mes amis सब कुछ past tense में बोलना है déjeuner avec mes amis alright déjeuner में extra i लगा दूं नो नहीं आएगा बिकॉज ये अव्वार के साथ कॉन्जुगेट हो रहा है और एक आखिरी और सेंटेंस बता दीजिए कनिका Je suis rentrée à la maison. je suis rentré À la maison. à la maison à 4 à 14 heures à 14 heures très bien perfect okay over to you Navya quickly tell us 5 things that you did today Aujourd'hui, j'ai eu fait dans l'université. aujourd'hui Aujourd'hui, c'est, c'était une enquête dans notre université. तो सेते की जगह हम बोलेंगे नव्या इलियावे इलिया होता है देर इज देर आर राइट कनिका लेकिन Yes. पार्टी थी एक फेस्टिवल थी एक इवेंट था तो इलियावे शिवानी ध्यान से सुनिएगा il y avait une fête à l'université ok और बताइए Euh, nous avons
nous avons, nous sommes arrivés dans l'université à 11 heures du matin. Nous sommes arrivés Euh, à l'université à 11 heures du matin. ठीक है. the fête was, how do we say, was organized. La fête, अब देखिए यहाँ पे आप पैसिव यूज कर रहे हो. अभी पढ़ाया नहीं है कनिका, शिवानी, नव्या, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए. La fête a été was. La fête a été organisée pour les étudiants. Pour les étudiants. Ok, perfect. और लास्ट में Yes. So, second first, like qui qui sont arrivés à l'université. Qui sont arrivés à l'université. À l'université, c'était une magnifique et incroyable fête. Ok. d'accord. The first year के जो बच्चे थे उनके लिए freshers type का कुछ आप बताना चाह रहे हैं ना? Yes. Ok, so आपको बोलना पड़ेगा les étudiants de première année. Ok, I don't know why did I put extra S. There's no reason to put extra S. De première année. Oh là. De première année. Voilà. Of the first year. De première année. Voilà. The première année means the freshers. Ok, très bien. And how do you say, Navya, we enjoyed a lot? Nous sommes amusants. Oh là là. Nous. बताइए. Beaucoup amusés. Nous nous sommes beaucoup amusés. Got it? Yes. चलिए नेक्स्ट. शिवानी फटाफट से कैमरा ऑन कीजिए. बताइए qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? शिवानी. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 5 heures du matin. Je me suis réveillé 5 heures à 5 heures du matin. du matin. 5 बजे. Yes, sir. Ok, 5 heures du matin. फिर après. Après. Ensuite, puis. हाँ, इन शब्दों का हमें लेना है. Après, ensuite, puis. ठीक है. बाद में, उसके बाद फिर ये सब. Après, je me suis brossé les dents. Right? फिर. Je me suis lavé. Voilà, je me suis lavé. 6 heures du matin. À 6 heures du matin. Voilà. Puis. J'ai préparé un déjeuner. J'ai préparé le lunch या नाश्ता. अच्छा, लंच पहले प्रिपेयर किया आपने. Le déjeuner. ठीक है. Très bien. Ok, parfait, Shivani. Et aujourd'hui, et hier, Shivani, tu t'es couché à quelle heure? Hier, tu t'es couché à quelle heure? क्या मतलब है इस प्रश्न का? Je me suis couché à
When the or Je me suis couché à 22 heures. Très bien. Ça va? C'est clair? शिवानी, नव्या, कनिका? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ईएन प्रोनाउन और वाई प्रोनाउन की। बताइए हमने क्या क्या कर लिया था? ईएन कर लिया हमने सर या शिवानी? मेरे को EN समझ नहीं आया क्योंकि मैं अपनी मेल को फीड कर रहा हूँ तो आप तो आप एक काम कीजिएगा, आज मैंने आपको वीडियो भेजा है उसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है? मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ पर वीडियो को डिटेल में देखिएगा। मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो भेजने में, बट आप देखिएगा उसको। बट मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जो द होता है वो हमें ईएन की तरफ लेके जाता है। हम क्या करते हैं, जो द है शिवानी, उसके बाद जो भी कॉम्पोनेंट होता है ना, उस पूरे को हटा के ईएन बनाते हैं, ठीक है? और उसको किस क्रिया के पहले लगाते हैं नव्या? जिस वर्ब के बाद में द पाया जाता है उसी वर्ब के जस्ट बिफोर हमारा ईएन आता है। तो आई एम टॉकिंग ऑफ माई बुक, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूंगा? इसमें देखिए शिवानी, द मो लीव दिख रहा है, ऑफ माई बुक। शिवानी इसका ईएन बना देते हैं अबाउट इट, और इसको कहां ले जाके रखते हैं? पार्ले के जस्ट पहले, ठीक है? तो अब आप बोलिए जॉन पार्ल। जॉन पार्ल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इट। बोलिए I am talking about it. मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब सर इसमें जैसे बुक का नाम नहीं लिया। हाँ, बुक का नाम नहीं लिया और कहां से हटा दिया शिवानी? द को पकड़कर उसके पीछे का पूरा हटा दिया, तो वो अबाउट इट, ऑफ इट उसमें आ गया, है ना? ऑफ इट बोल दो, अबाउट इट बोल दो, दोनों जो अंग्रेजी में ये है वो ईएन बन जाएंगे, ठीक है? और किसी को ये बोलना है कनिका, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे कनिका? नो, je n'en parle pas, je n'en parle pas, राइट शिवानी? राइट सर। ओके नव्या, tu as parlé de ton livre? Navya, I think her network is stuck. Yeah, Kanika, tu as parlé de ton livre? Tu as parlé de ton livre? You spoke about your book. हाँ में जवाब दीजिए। J'en ai parlé. Voilà, j'en ai parlé. Navya, can you hear me? I think she has some. Can you hear me? No. Okay. How would you say no? I haven't talked about it yet. No, I haven't talked about it yet, Navya. You can turn your camera off. I think you have some bandwidth with thing network issue. Just turn the camera off. Yeah. Yeah. Je n'en ai pas encore parlé. Je n'en ai pas encore parlé. ठीक है शिवानी, समझ में आ रहा है? Je n'en ai pas encore parlé. हमें क्या करना होता है? पास्ट टेंस में विशेष ध्यान देना है शिवानी। जो ऑक्सिलरी एआई होता है उसके भी पहले ईएन को बिठाना होता है। बाकी सब क्रियाओं में जो मुख्य क्रिया है उसके आजू बाजू में, लेकिन सिर्फ पास्ट कंपोज ऐसा एक टेंस है शिवानी जिसमें अववार के भी पहले ईएन को लाके रख दोगे यहाँ पे। क्योंकि आप मुझसे पूछते वरना कि सर ये पार्ले के पहले क्यों नहीं लाके रखा? यहाँ तो पार्ले के पहले लाके रखा, यहाँ पे भी यहाँ रख देते। तो यहाँ इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सिलरी के पहले लगाते हैं यहाँ पे, इसलिए, ठीक है? इसको याद रखना है। तो पास्ट टेंस में विशेष रूप से ईएन को यहाँ लेके जाएंगे। ओके, तुमने सिल्वी से बात करी तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में? दो तुम प्रोजेक्ट बन जाएगा ईएन, और ईएन को हम यहाँ लगा देंगे। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया हाँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टू सिल्वी, अबाउट इट टू सिल्वी वाला, राइट? दैट्स हाउ यू वुड डू। और इसको हम शॉर्ट में कह देंगे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टू हर कनिका। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टू हर, कैसे बोलेंगे? Je vais lui en parler. क्या मतलब होता है इसका कनिका? वेरी गुड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टू हर। मैं उससे इस बारे में बात करने वाला हूँ, बात करने जा रहा हूँ। चलिए नव्या, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसका नेगेटिव बताइए, दिस वन।
Je ne vais pas lui en parler. Very good. What does that mean in English? I will not talk about it to them. हाँ, very good. I am not going to talk about it to him, about it to her. हमें नहीं पता लुई कौन है. अगर सिल्वी है तब तो हर बोल देंगे, और अगर हमें पता ही नहीं कॉन्टेक्स्ट में हवा ये सेंटेंस ऐसे मिल गया तो हमको पता नहीं कौन है. ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा था. या नव्या, So I have one question. टेल मी. Yes, sir. So the Jave, so what it is like? I will or I will be doing, like, is it past, future continuous or just future? Oh, this is futur proche. Futur proche, near future. Je vais chanter. क्या मतलब है इसका? je vais I chanter. will be singing. नहीं, I I will. will sing. नहीं I will sing है, नहीं I will be singing है. ये है I am going to sing. याद है आपको? ध्यान रखिए. Actually, I get confused with future torch and normal future. नॉर्मल फ्यूचर में आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको विल करके बोलना है नव्या. आई विल सिंग, वी विल डांस, दे विल स्पीक, इस प्रकार से बोलना है नॉर्मल जो फ्यूचर होगा. राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. आई विल टॉक. अब ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर आगे मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको, कनिका, शिवानी, नव्या, लेकिन एक बार देख लेते हैं. je parlerai. शिवानी, je parlerai मतलब आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी. ठीक है, किस बारे में? मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में. किसको बोलूंगा? बोलूंगी मेरे मित्रों को. तो मित्रों का तो बन जाता है लर, और बन जाता है ये द में प्रोजे. क्या बन जाएगा शिवानी? द में प्रोजे, एनी गेसेस? ओ, और कहां ले जाके रखेंगे हम? जे के बाद. हाँ, मतलब पार्लरे के पहले है ना? यस सर. ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने. सो हम इसको ले जाएंगे पार्लरे के जस्ट पहले. ओके, आगे हम बढ़ते हैं. मैं आपको इसको बताता हूं. इसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ पे इस द में प्रोचे को ईएन बना दिया और आ में जामी को लर बना दिया. ये लर मैंने कल की क्लास में थोड़ा बहुत सिखाया था, आप देखिएगा वीडियो को, कनिका, शिवानी, नव्या. ये लर और ओ, और ये दोनों उठ के आगे आ जाते हैं. और लर और ओ में हम पहले प्रायोरिटी देते हैं लर को, और बाद में देते हैं इंपॉर्टेंस ईएन को. je leur en parlerai, राइट? और मैं उनसे इस बारे में नहीं बात करूंगा. कैसे बोलेंगे शिवानी? मैं उनसे इस बारे में बात नहीं करूंगा. je ne leur en parlerai pas. हाँ, je ne leur en parlerai pas. कितना लंबा वाक्य था, लेकिन ऐसे बनेगा. देखिए, इसको ऐसे चलाते हैं. मैं नहीं बात करूंगा, je ne parlerai. आप कहोगे सर हमें पार्लरे आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लो फिलहाल कि पार्लरे होता है विल स्पीक. तो आई विल नॉट स्पीक शिवानी, je ne parlerai pas. फिर उनसे तो लर हो गया, किस बारे में? उस बारे में, तो ईएन हो गया. तो je ne leur en parlerai pas. यहां तक बताओ कनिका, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, राइट? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं. कल हम यहाँ पे देख रहे थे कि हम अगर ये बोलना चाहें कि नंबर्स को अगर आप क्वांटिटी को रिप्लेस करना चाहो ना नव्या, तो भी आप ईएन लगाते हो. कैसे? आई हैव 3 एप्पल्स. ठीक है, मेरे पास 3 एप्पल्स हैं. हम क्या करते हैं, जब संख्या आती है ना शिवानी, उस संख्या के बाद वाली संज्ञा को हटाते हैं. संख्या के बाद वाली संज्ञा को हटाते हैं, यानी नंबर के बाद वाली जो यूनिट है, एप्पल है कि बुक्स है कि फ्लावर्स है कि पेन्स है, उसको हटा देंगे हम नव्या, और उसका ईएन बना देंगे. जस्ट अ सेकेंड. उसका ईएन बना देंगे, और उस ईएन को हम ले जाएंगे हमारी मुख्य क्रिया के पहले. तो j ई एन ए आई वा. मेरे पास 3 है, वो मेरे पास वो 3 है. तुम्हारे पास कितने एप्पल्स हैं? j'en ai 3.
j'en ai trois का मतलब क्या हो जाएगा शिवानी? मेरे पास वो 3 है। वो क्या? en क्या? जिस सवाल पूछा है वो, एप्पल्स। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। किसी ने पूछा कि इधर इधर स्टार लगा के लिखता हूँ, tu as des enfants। किसी मैरिड पर्सन से पूछा जिसके बच्चे हैं, है ना? उससे पूछा tu as des enfants, तुम्हारे बच्चे हैं? Do you have kids? तो उसने कहा oui, j'en ai un, j'en ai un, I have one। मेरे एक बच्चा है, बेटा है बेटी है वो नहीं बता रहे हम। किसी ने पूछा तुम्हारे भाई बहन हैं? तुम्हारे भाई हैं? tu as, तुम्हारे बहनें हैं? tu as des sœurs, राइट? तुम्हारे बहनें हैं? tu as des sœurs। तो आपने कहा oui, मेरे एक बहन है, तो हम क्या बोलेंगे? j'en ai, क्या लगाएंगे यहाँ पे अगर एक बहन है तो? या une। हाँ, बहन तो une होगी ना, une, j'en ai une। किसी की 2 बहनें तो j'en ai deux, और कोई बहुत लकी है उसके 5-7 बहनें हैं तो 5, 6, जितनी भी संख्या है उतनी बहनों की संख्या हो सकती है। पहले तो होते थे कितने सारे बच्चे घर में, बड़ा मजा आता था, राइट? सो वी j'en ai une, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो हम जब उस चीज का जिक्र कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद उसका जिक्र नहीं करेंगे शिवानी, उसको en के रूप में डाल देंगे और यहां से उसकी संख्या बता देंगे कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। ठीक है नव्या, समझ में आ रहा है आपको? राइट? किसी ने पूछा तुम कितनी पिज्जा खाओगे? चलो, उसको इतनी पिज्जा पसंद है वो तो 10 भी खा सकता है। तो तुम कितने पिज्जा खाओगे? Tu vas manger combien de pizza? कितने पिज्जा खाओगे? तो मैंने कहा मैं खाऊंगा 3। Je vais manger TROIS। आप मुझे बताना स्क्रीन आपको दिख रही है नहीं दिख रही है? ठीक है, दिख रहा है je vais manger 3। अब आप बताओ शिवानी, मैं en कहाँ लगाऊं? यहाँ पे कहीं पे en भी तो लगाऊं। किसके पहले? हाँ, je vais en manger 3। ठीक है नव्या, कनिका, आई एम गोइंग टू ईट 3 ऑफ इट। मैं 3 खाऊंगा वो तो। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कनिका je vais manger 3। आप कहोगे सर ये बोल दो तो चलेगा क्या? je vais manger 3 नहीं, en लगाना पड़ेगा। ठीक है कनिका, शिवानी, समझ में आ रहा है आपको? तो ये en एक और रूप में कहाँ आता है? जब हम संख्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। ये हो गया ये वाला। आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ा था A1 में आर्टिकल पार्थिव, थोड़ा, थोड़ी, थोड़े, ड्यू, दला, याद है आपको कनिका? ड्यू लगता है मैस्कुलिन के पहले, दला लगता है फेमिनिन के पहले, DEL अपॉस्ट्रोफ लगता है वोवेल्स स्टार्टिंग सिंगुलर के पहले, और DES लगता है प्लूरल के पहले, राइट? तो इला ड्यू पैन, उसके पास थोड़ी सी ब्रेड है। इस केस में क्या होता है? जब थोड़ा, थोड़ी, थोड़े होते हैं, वो संख्या तो नहीं है ना, 1 2 3 तो नहीं है। तो उस केस में क्या होता है? हम इस पूरी चीज को हटा देते हैं शिवानी, उस पूरी चीज को गायब कर देते हैं कनिका, ध्यान रखिएगा। इसको पूरी को हटा दोगे आप और उसका en बना दोगे। ब्रेड और सम दोनों हटा दोगे। मैं थोड़ा सा हटाता हूँ ऐसे वरना आपको दिखेगा नहीं। इसको पूरे को ही हटा दोगे और इलोना, हाँ उसके पास वो है इलोना। इलोना मतलब ही हैज इट, ही हैज इट। ठीक है, तो ड्यू दला में ध्यान रखना, उस पूरे को रिमूव विद द ऑब्जेक्ट बाय en। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऐसी क्रियाएं शिवानी, ऐसी क्रियाएं कनिका जो द लेती हैं अपने बाद में, उनके अंदर भी हम en लगा देते हैं। कैसे? अवार बजमा द, आवश्यकता होना, राइट नव्या? किसी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो अवार बजमा द इज टू हैव अ नीड ऑफ, टू हैव अ नीड ऑफ, या फिर टू नीड। इंग्लिश में टू नीड भी बोलते हैं या फिर टू हैव अ नीड ऑफ। मैंने सिल्वी से पूछा, सिल्वी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है क्या? सिल्वी, tu as besoin de mon aide? tu as besoin, do you need, do you have need of my help? तो उसने कहा हाँ मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। तो वो बोलेगी oui, j'ai besoin de votre aide। यहां तक समझ में आता है आपको शिवानी? आई नीड योर हेल्प। ठीक है कनिका, नव्या?
अब हमें क्या करना है, इसको हटा के, कहां से मैं हटाऊंगा कनिका? द वोत्र एड, और इसका क्या बना दूंगा? ई एन, और इसको ले जाऊंगा यहां, क्योंकि मुख्य क्रिया ए आई है, बज में क्रिया नहीं है, ठीक है? बज में इज नॉट अ वर्ब नव्या। तो मेरा अंत में आंसर बन जाएगा जॉने बजवा। क्या मतलब होता है जॉने बजवा का? बताइए एनीवन, जॉने बजवा मतलब? आई नीड इट, आई नीड। हाँ, क्या मतलब होता है आई नीड इट का? किस चीज की आवश्यकता है? हेल्प की आवश्यकता है, आई नीड इट, राइट? मुझे वो चाहिए, आई नीड इट। और अगर मुझे वो नहीं चाहिए होती तो नव्या कैसे बोलूंगा? आई डोंट नीड इट। Once again. Very good, मिस, merci monsieur, mais je n'en ai pas besoin. थैंक यू सर, लेकिन मुझे नहीं चाहिए मैं, लेकिन je n'en ai pas besoin, ठीक है? आई डोंट नीड इट, बहुत पोलाइटली। क्लियर है नव्या, कनिका, शिवानी, राइट? इसी प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं अवार ओवी द, किसी चीज की डिजायर होना, अवार पर द, किसी चीज से डर लगना, ठीक है? तो इस वाले कंस्ट्रक्शंस में आपको हमेशा ई एन लगाना पड़ेगा। तो ये तीन कैटेगरीज होती है नव्या, कनिका, शिवानी, जिसके अंदर हमारे को ई एन लगाना पड़ता है। या तो हम लगाते हैं इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हम द के बाद वाली चीज़ों में हटाते हैं, या फिर हम क्वांटिटीज में हटाते हैं, या फिर हम अंत में जो हमारे पास है कोई ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें द लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। और देखिए, il parle de ses projets, क्या मतलब होता है इसका कनिका? il parle de ses projets, हाँ, he's talking about his project, he's talking about it, कनिका? il en parle, he is not talking about it, il n'en parle pas, ठीक है? il n'en parle pas, he's not talking about it, perfect। नेक्स्ट, किसने पूछा आपसे नव्या, डू यू वांट सम चॉकलेट, tu veux du chocolat? आपने उत्तर दिया हाँ मुझे चाहिए। oui j'en veux। और अगर आपने कहा शिवानी नहीं मुझे नहीं चाहिए, वेरी गुड, नो je n'en veux pas, नो je n'en veux pas, जो नो है, ये जो नो है ये चॉकलेट है, राइट? ओके, elle a besoin de repos, उसको आराम चाहिए, उसको आराम की जरूरत है, उसको उसकी जरूरत है कनिका। elle en a besoin, elle en a, लिएजन हो जाएगा elle en a, और उसको उसकी आवश्यकता नहीं है कनिका। elle n'en a pas, elle n'en a pas, elle n'en a pas besoin, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे वाई प्रोनाउन। याद है आपको वाई? वाई रिप्लेस क्या करता है? जगहों को, देयर। तो आपको एक प्रेपोजिशन याद रखना है शिवानी, आ मिल जाए आपको, स्यूर मिल जाए, स्यूर होता है ऑन, दो मिल जाए, इन, कोई भी प्रेपोजिशन मिल जाए, सभी प्रेपोजिशन क्या होते हैं? इन, एट, अबव, बिलो, बिहाइंड, अराउंड, इन सब के अंदर भी आपको वाई लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं पेरिस जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पेरिस, तो वहां जा रहा हूं, तो वहां के लिए क्या करूंगा नव्या? पेरिस और आ प्रपोजिशन को हटा के वाई बना दूंगा, और उसको अगेन कहां ले जाके रख दूंगा? वर्ब के पहले, तो हो जाएगा जीवे। व्हाट डज दैट मीन नव्या? जीवे, जीवे, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं, ठीक है? मैं वहां नहीं जा रहा हूं शिवा, कनिका, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। Yeah, Navya wants to say something once we listen to her. Yeah, Navya. Could you could you please explain this why thing again? Okay, Can you hear? I'll help you. So what happens with why? Why मतलब there, ठीक है? Why का मतलब होता है there, THERE, there. And how do you use it? Whenever there is a preposition a and it is followed by a place, you remove that a preposition along with that place and you put y out of it.
और उस वाई को हम कहाँ लेके जाएंगे? बिफोर नव्या, बिफोर द वर्ब, जस्ट बिफोर द वर्ब. सो je vais à Paris बन जाएगा j'y vais, j'y vais. ठीक है नव्या? मतलब आई एम गोइंग ओवर देयर, मैं वहां जा रही हूं. और कनिका आप कैसे बोलोगे? मैं वहां नहीं जा रही हूं. je n'y vais pas, je n'y vais pas. वेरी गुड. अच्छा, किसी ने पूछा आपसे शिवानी, कल बाजार गए थे क्या? tu es allé au marché hier? तो आपने जवाब दिया हाँ, कल मैं वहां गई थी. अब आपको ये तो पता है कि बाजार की जगह मुझे वाई लगाना है, और सर ने कहा था कि पास्ट टेंस के अंदर ऑक्सिलरी के भी पहले लगा देना, तो मैं वहां ले गई वाई को. ठीक है शिवानी? तो आप बोलो मैं कल बाजार गई लेकिन मैं वहां गई, ये बोलना है आपको. Je suis allé. Right. So we, Je suis allé. very good. We j'y suis allé. बोलिए j'y suis allé. Je suis allé. वेरी गुड. मैं कल वहां गई. अब से आगे हम A2 पे और बेहतर अंग्रेजी, हमें फ्रेंच में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? मैं वहां गई. मैंने पूछा आपसे शिवानी, tu es allé au marché hier? Oui monsieur, j'y suis allé. मतलब I went there. हाँ, कल मैं वहां गई थी. ये वहां लगाना आवश्यक है. यही तो होता है. हम हिंदी में तो बोलते हैं ना वहां. कहाँ? मार्केट. बार बार बोलते हैं कल मार्केट गए थे. हाँ, कल मैं मार्केट गई थी. नहीं, कल मैं वहां गई थी. तो वो बेहतर तरीका होता है फ्रेंच के अंदर. और अगर मैं कल वहां नहीं गई थी कनिका? वेरी गुड. नो, je n'y suis pas allé. je n'y suis pas allé. बोलिए कनिका. परफेक्ट. क्लियर है सभी को? तो अब आपको अपना पास्ट टेंस में जब आप बताओगे तो एक अच्छी बात आप लोगों ने चालू कर दी कि आप पास्ट में बोलने लग गए. पास्ट में आप अवार बोलते हो, आप एत्र बोलते हो, आप रिफ्लेक्सिव बोलते हो, आप पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हो, और अब en और y को भी डालना चालू करो. ओके, आगे. नव्या, किसी ने पूछा est-ce que le livre est dans le sac? क्या किताब जो है वो बैग के अंदर है क्या? तो व्हाट इज द प्लेस नव्या? प्लेस क्या है? dans le sac है ना. इसको वाई बना देंगे. dans le sac. तो आप कैसे जवाब दोगे? हाँ, the book is over there. Le livre y est. Le livre y est. y est, y est, y est बोल सकते हैं. y est. क्या मतलब है इसका नव्या? le livre y est. The book is there. Yeah, the book is there. किताब वहां पर है. और आप चाहो तो इस le livre को हटा सकते हो शिवानी, और il बना दोगे, तो अंत में आपका उत्तर हो जाएगा oui, il y est. il y est. il y est मतलब It is there. इट इज देयर. हाँ हाँ, वो वही है, वो वही है. कहीं नहीं गई तुम्हारी किताब, वही है. इलिए, इलिए, इट्स ओवर देयर. ठीक है कनिका? नेक्स्ट. अगर वो वहां नहीं पड़ी है तो क्या बोलोगे कनिका? अरे वो वहां नहीं है. हाँ, नो इल नहीं है पा. वो वहां नहीं है, इल नहीं है पा. क्लियर है शिवानी? समझ में आ रहा है आपको? इल नहीं है पा. आगे बढ़ते हैं. ये तो हुई जगह. जगह तो समझते हो, बैग के अंदर, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी शहर, और बैग के अंदर, टेबल के ऊपर, छत के ऊपर, तो वो भी जगह होती है. उसमें क्या करना है? आ नहीं मिलेगा आपको. अंदर, बाहर, आगे, पीछे, वो वाले प्रीपोजिशंस मिलेंगे. उन प्रीपोजिशंस के साथ उस जगह को हटाना, वाई बनाना, और वाई को आगे उठा के ले आना. प्रैक्टिस और करिएगा इसमें. मैंने आपको खूब सारे सेंटेंसेस दिए हैं. आगे बढ़ते हैं. अगर जगह नहीं है लेकिन आप प्रीपोजिशन है, जगह नहीं है लेकिन आप प्रीपोजिशन है, तो भी वाई लगता है. उदाहरण के तौर पे देखते हैं. मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं. je pense à mon avenir. आ क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि नव्या, pense से वर्ब हमेशा अपने बाद में आ लेता है किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए. किसी भी चीज को बोलते हैं quelque chose. quelque chose. quelque chose मतलब something. टू थिंक अबाउट समथिंग. ठीक है नव्या? समझ में आ रहा है कनिका, शिवानी? टू थिंक अबाउट समथिंग, ये क्रिया की पहचान है कि वो किसी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो पहुंच से आ लेता है किसी निर्जीव चीज के बारे में. निर्जीव चीज मेरा भविष्य हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. लेकिन ये जगह तो नहीं है ना नव्या. इट्स नॉट अ प्लेस. बट फिर भी हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे शिवानी? वाई से. तो je pense à mon avenir, I think about my future.
मैं क्या करता हूं इसमें कनिका, आ मो नावनीर को गायब करता हूं और क्या बना देता हूं उसका वाई, और कहां ले जाके रख देता हूं यहाँ पे। तो उत्तर हो गया हाँ मैं उस बारे में सोचता हूं। कैसे बोलते हैं हाँ मैं उस बारे में सोचता हूं? जी पॉन्स, जी पॉन्स, आई थिंक अबाउट इट। समझ में आता है आप सभी को? आई थिंक अबाउट इट। अब अंग्रेजी में ये तो नहीं बोलेंगे ना आई थिंक अबाउट देयर, बैठेगा नहीं, ठीक है ना भैया? आई थिंक अबाउट इट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम स्कूल जा रहे हो, वी जी वे, क्या तुम अपनी परीक्षा के बारे में सोचते हो नहीं सोचते हो? अब क्या वो अपने परीक्षा के बारे में सोचती है या नहीं सोचती है? एली पॉन्स बिल्कुल सोचती है। इसको देखिएगा, इस पीडीएफ को मैं आपको भेज दूंगा। कुछ और उदाहरण यहां दिए हुए हैं। मैं पेरिस जाना चाहता हूं, तो आप पारी को वाई बनाया और यहां लगाया जव ई आले, आई वांट टू गो देयर। तुम अपने छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हो, तो द लग गया ना शिवानी, तो ईएन बन जाएगा, यहां से हटाना और ईएन लगा देना, इलों पाल। वो अपने करियर के बारे में सोचता है, तो वाई लगा देना क्योंकि आ के बाद तो वाई आता है। हमने कुछ फ्रूट्स खरीदे, तो दे आ गया तो ईएन बना देना और यहां ले जाके रख देना, नू जो नावो आशिते, हमने कुछ खरीदे। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है नव्या? से बो क्लियर? कनिका, शिवानी, से बो? अब आपका होमवर्क सुन लीजिए अच्छे से। 2 दिन अब छुट्टियां हैं, आराम से रिलैक्स कीजिएगा। पता नहीं आप कहोगे सर आप रिलैक्स करने दो तब ना, होमवर्क पे होमवर्क देते हो, तो होमवर्क तो देना पड़ेगा। तो आपके लिए ईएन है, इसको पूरा करेंगे, राइट कनिका, शिवानी, नव्या? इसके अंदर आंसर्स भी मैंने पीछे दिए हुए हैं, आपको बस ढूंढना है कि क्या रिप्लेस करोगे, उसका ईएन बना दोगे और आंसर दोगे वी जॉन व, मुझे चाहिए वो, ठीक है? इस प्रकार से शिवानी समझ में आ रहा है? और वाई वाले भी कर लेना, नीचे आंसर्स भी दिए हुए मैंने, वो भी देख लेना, कंफर्म कर लेना, पर आंसर्स तभी एक्सेप्ट करना जब आपके दिल से आवाज आए कि मैं समझ चुकी हूं, अदरवाइज सिर्फ ऐसे नहीं करना। और अंत में एक आपके लिए एक टेक्स्ट लेके आया हूं मैं, वाई और ईएन के साथ पास्ट टेंस को डालते हुए। इस टेक्स्ट को छुट्टी के दिन 2 दिन पढ़ोगे, इसका ट्रांसलेशन करोगे अंग्रेजी में और इसको मुझे पढ़ के सुनाओगे मंडे की क्लास में, ठीक है? इसको पूरे को पढ़ोगे आप और इसका आप ट्रांसलेशन भी करोगे और मुझे बताओगे वाई क्या लगाया, ईएन क्या लगाया, क्या मतलब है। और अंत में कुछ प्रश्न है 4, उन 4 प्रश्नों के 4 उत्तर आपको दिए हुए, प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ के क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक पे जब हम मंडे को मिलेंगे। Ça va? Très bien, voilà. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Pas de question. Pas de questions, pas de questions. Okay, so when there is a weekend waiting for us, so I wish you bon weekend. À lundi. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci, merci. Prenez soin de vous. Voilà, au revoir.